Good afternoon, students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 2 of geography, globe, latitudes and longitudes. And this is our lecture number 1. So let's start. Actually, students, in this chapter, we come to learn about longitude and latitude. So as we know by now, our earth is flattened slightly at the poles and hence the shape of the earth is described as a geoid. Okay. And globe is a miniature model of the earth. So globes are of various types. There are big size globes which are not handy, and there are small size pocket globes. There are globe-like balloons which are inflated when required and are highly portable. And globes can be rotated on its axis, so they are not fixed. And countries, continent, and oceans are correctly, correctly demarcated on the globe. So, students, this is the chapter globe, latitudes, and longitude. Okay, so in the previous chapter, you have read about our planets. Earth is not a sphere. Okay, you know that. Now you know that कि Earth is not a sphere. कि ये sphere नहीं होता, गोल नहीं होता, and it is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in a middle. Okay, कि ये north और south से हमने देखा था अपने पिछले चैप्टर में, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में, नॉर्थ एंड साउथ पोल से ये स्लाइटली फ्लैटेंड होता है एंड मिडल में से ये बल्ज होता है, मतलब कि उभरा हुआ होता है. सो कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम एंड टू गेट एन आइडिया. सो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. एक्चुअली जो हमारा ग्लोब है, देखिए आप यहाँ पर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ये एक मॉडल है, एक मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब अर्थ की. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसे रोटेट भी कर रही है. तो ग्लोब जो है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट भी करते हैं. अभी हम इसको क्लियर भी करेंगे. तो ग्लोब जो होता है, देखिए इसको, हमारी ये एक मिनिएचर फॉर्म है एक अर्थ की, जो कि अर्थ जो है हमारी कुछ इसी तरीके से हमारी अर्थ जो है वो दिखती है. ओके, तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस basic features. Basic features in which we will study about the axis, poles, latitudes, and longitudes. Okay. And second, we will discuss about the important parallels of the latitudes. Next topic, we will discuss heat zones of the earth. And then after that, we will study about the what are longitudes. And then we will study about the longitude and time. And the last topic we will read, why do we have standard time? So these are the topics which we are studying in this chapter. Okay, so today we will discuss the first, second, and third topic. Any basic features, axis, poles, latitudes, and longitude. Second, important parallels of latitudes. And third, heat zone of the earth. Okay, so these three topics we will discuss today. So let's start. Yes, students. So globes may be. अब हमने अभी बताया कि globe is a true model or miniature form. Globe is a true model of the earth. ये globe क्या है? एक हमारी अर्थ का एक true model है, एक miniature form में है ये. And globes may be varying size and types, big ones which cannot be carried easily
small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. So now I told you कि globe क्या है? Globe, there are big size globe which are not handy. There are small size pocket globes. There are globe like balloons which are inflated when required and are highly portable. Globes can be rotated on its axis and they are not fixed. So यहाँ पर जो आपके पास ये है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये क्या बता रही है आपको कि ग्लोब के जो साइज है, ग्लोब अलग अलग साइज में और अलग अलग टाइप का ग्लोब्स आपको देखने को मिलता है. ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स. ओके, ग्लोब के आपको बहुत सारे अलग अलग साइज एंड टाइप्स देखने को मिलेंगे. ये कैसे ग्लोब कैसे साइज एंड टाइप हो सकता है? एंड बिग वंस. ठीक है, एक तो ये क्या हो सकता है, आपको एक बड़ा ग्लोब मिल सकता है विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, जिसको आप इजिली कैरी नहीं कर सकते. यू कांट ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर. You can't move this one place to another, so which cannot be carried. You can't carry this big globe. ठीक है. So then second, small pocket globes. सेकंड जो ग्लोब मिलेगा आपको, छोटे साइज के भी स्मॉल साइज के भी ग्लोब आपको मिल सकते हैं. ठीक है. एंड यू कैन कैरी इजली. सो एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, आपको बैलून्स की तरह भी जैसे ग्लोब देखने को मिलते हैं ऐसे भी हो सकते हैं. सो गुब्बारे जैसे ग्लोब, बैलून जैसे ग्लोब, जिसमें क्या होगा, विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज. इनमें हवा भरी जा सकती है और इन्हें आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सकता है. तो अ ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. कभी भी ग्लोब क्या होता है, फिक्स नहीं होता है. ओके, जैसे ये देखिए आप ग्लोब, आपको इस लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. ग्लोब आपको फिक्स नहीं मिलेगा. ग्लोब इज नॉट फिक्स. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोब इज रोटेटिंग ना, ग्लोब ग्लोब घूम रहा है, ये फिक्स नहीं है. सो इट कैन बी रोटेटेड. ये रोटेट हो सकता है द सेम वे एज टॉप स्पिन और पोटर्स व्हील इज रोटेटेड. जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे पोटर्स होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, उनका जो पहिया होता है, उनकी जो व्हील होती है, ठीक है, जैसे जिस तरीके से वो घूमता है ऐसे ही हमारा जो ग्लोब है वो भी क्या होता है, इट इज रोटेटिंग. ठीक है, ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट इज रोटेटिंग. ओके. और ऑन द ग्लोब countries, continent and oceans are shown in their correct size. अब आप अगर ग्लोब में देखें, देखिए ये ग्लोब, ये आप ग्लोब देखें तो ग्लोब में आपने देखा कि आपको ग्लोब के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं. यहाँ पर आपको ओशियंस देखने को मिलते हैं, ओशियंस होते हैं. ठीक है, जो आपके 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, कंटिनेंट्स, कंट्रीज, वो सब आपके लोकेट होते हैं किसके अंदर, ग्लोब के अंदर. तो ग्लोब पर आप कंट्रीज को, कंटिनेंट्स को, ओशियन को उनके करेक्ट साइज में आप शो कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो. अच्छा, आप कहीं पर माइंड में आता है कि भाई अरे जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर अगर हम ये कंट्रीज, कंटिनेंट और ओशियन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं करेक्ट साइज में इनको आप देख सकते हो. तो यहाँ पर तो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, जबकि इंडिया ही अकेला हमारा इतना वास्ट है. तो यहाँ करेक्ट साइज का मतलब कि जो, मान लो अगर अगर हम दूसरे के साथ कंपैरिजन करें, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करें, तो जो जिस साइज में, जिस शेप में होगा, आपको वो उसी चीज में, उसी शेप में, उसी साइज में, बड़ा या छोटा आपको वहां पर नजर आएगा ग्लोब के अंदर. ओके. Now, it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. So, actually, students, it is quite difficult to describe the location of a place on a spherical structure like a Earth. So, for this purpose, certain points and lines are needed for reference. Yes, so it is quite difficult to describe the location of a place on a spherical structure like the Earth. For this purpose, certain points and lines are needed for reference. So actually, student क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसका. और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के ऊपर
प्लेसेस को लोकेट करना, ठीक है, उनकी लोकेशन बताना, ये बहुत, और उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम यहाँ पर हमें जरूरी है, सो फॉर दिस पर्पस सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइंस आर नीडेड फॉर रेफरेंस। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और जो है और कुछ लाइंस जो हैं वो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर उनको दिखाना, उनको लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। ओके, सो दैट्स व्हाई now the question arises as to how to locate a place on it. तो यहाँ पर अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि now the question arise, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि as to how to locate a place on it, कि हम किस तरीके से एक इस ग्लोब के ऊपर यानी अर्थ का किस तरीके से हम उसको एक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को जरूरत होती है किस चीज की, हमें इसके लिए कुछ पॉइंट्स की, कुछ लाइंस को के रेफरेंस की नीड होती है। So you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. Yes, look at this picture. In this picture, this is our globe, okay, and ये देखिए this is a needle, okay, और ये needle पूरी ये ऐसे tilted फॉर्म में, ठीक है, तिरछे टिल्टेड फॉर्म क्या होगी, यानी एक तिरछे रूप में आपकी एक जो ये needle है वो ग्लोब में से निकाली गई है। जैसे आप ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये है आपके पास नीडल। Okay, so you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner and which is called its axis. ये जो नीडल जहां से क्रॉस करके निकाली गई है बीच में से ग्लोब के, तो ये वाले जो पोर्शन है ये इसके ग्लोब के क्या हो जाते हैं, एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। So two points on the globe through which the needle passes are two poles. अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ग्लोब के ऊपर, जहां से आप लोग क्या कर रहे हो, आप जहां से ग्लोब में से नीडल को निकाल रहे हो। तो 2 पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट ये यहाँ पर, एक ये पॉइंट ये है, और एक पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, सो ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो यही आपके पास क्या होते हैं, ये आपके 2 पोल्स होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। So the globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. अब ये जो ग्लोब है, ग्लोब कैन बी मूव, जैसे आप देख रहे हैं कि ये ग्लोब जो है कंटिन्यूसली, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मॉडल के अंदर कंटिन्यूसली ये मूव कर रहा है, फिक्स नहीं है। तो ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल, ये जो नीडल है, देखो ये नीडल है, इसके चारों तरफ ये मूव कर रहा है। सो ये मूव करता है इस नीडल के, और कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखिए कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये हमारी ये साइड कौन सी होती है, वेस्ट, और दिस इज आर ईस्ट, दिस इज द ईस्ट। सो ग्लोब कहाँ है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, सो दिस मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि अर्थ भी हमारी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। हमारी जो रियल अर्थ है उसके अंदर आपको ऐसी कोई भी निडल नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरह की कोई निडल नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये जो हमारी अर्थ होती है वो सिर्फ अपने एक्सिस के चारों ओर क्या करती है, मूव करती है, अपने एक्सिस के ही चारों रोटेट करती है। इस तरह की कोई भी निडल नहीं होती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये जो हम एक्सिस की बात कर रहे हैं ये हमारी जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में आपको अर्थ पर नहीं मिलती। क्लियर स्टूडेंट्स? Now the another imaginary line running over the globe divided it into two equal parts. अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, देखिए
आपके पास एक और लाइन होती है। अब हम यहाँ पर किस लिए हम लाइंस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि हमें कुछ इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। ठीक है, हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है कि हम उस ग्लोब के ऊपर प्लेस को कैसे लोकेट करना है। तो इसीलिए हमें कुछ पॉइंट्स की और कुछ लाइंस की नीड हो जाती है इस तरह के प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। सही, तो हमने पॉइंट्स देखे पीछे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड एक्सिस हमने देखा। नाउ एक अनदर इमेजिनरी लाइन, एक और दूसरी इमेजिनरी लाइन जो है हमारे पास होती है, रनिंग ऑन अ ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट, जो कि हमारे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये लाइन, हमने ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर हमने इसे बीच में इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिल्कुल मिड में से एक लाइन हमने यहाँ पर लगाई है। सो ये हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंड दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ओके, सो दिस लाइन, यस, दिस लाइन is known as the equator and the northern half of the earth। देखिए अब ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने, इस वाली लाइन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। और हमें पता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे क्या होते हैं, साउथ। तो इसने हमारे जो अर्थ है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ के अंदर, जिसको नॉर्थ में बांटा है, डायरेक्टली नॉर्थ में और साउथ में इससे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो नॉर्दर्न हाफ है अर्थ का, दिस इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर बच्चे क्यों बोला, क्योंकि हमने अभी करा कि ये एक स्फेरिकल स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है। अब स्फेरिकल फॉर्म में होता है अर्थ, तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो वो हो गया हेमिस्फीयर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ठीक है, दो दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में अब ये डिवाइड हो गए हैं हमारे। तो therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। तो स्टूडेंट, ये जो इक्वेटर लाइन है, आप इससे भी मान के चले कि ये जो इक्वेटर लाइन हमारे पास है, ये भी हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। ये आपको एक्चुअल में अर्थ, जो हमारा एक्चुअल में प्लैनेट है अर्थ, उस पर आपको इस तरह की कोई भी लाइन नहीं मिलती। तो दिस इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। क्योंकि देखिए आपको तो फ्रंट दिख रहा है ना अर्थ का, ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म होती है, तो गोलाकार में होती है। तो ये चारों तरफ, इससे पूरा इसको चारों तरफ से ऐसे ही है ना, पूरा चारों तरफ से इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, इस तरीके से पीछे से भी ना, ऐसे, ठीक है। सो इसने एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और ये अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ऑल पैरेलल्स सर्कल फॉर्म द इक्वेटर, yes, all parallels circular form the equator up to poles are called parallel of latitudes। अब यहाँ पर आपके पास ये देखिए, इसके अंदर ये इक्वेटर आपका खींचा है, इक्वेटर के साथ साथ फिर इसके बराबर बराबर आपने जैसे जैसे ऊपर ऊपर इसके ऐसे लाइन खींचते जा रहे हैं, ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, ये आपका पहले इक्वेटर आया, इक्वेटर की एक लाइन को आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ग्लोब को। उसके बाद इसके पैरेलल ऊपर आपके पास क्या चलते गए, ऐसे सर्कल बनाते चले गए, ठीक है। सो ऑल पैरेलल सर्कल फॉर्म द इक्वेटर अप टू द पोल्स, ठीक है। पोल्स तक, जब इक्वेटर से पोल्स तक हम सभी के सभी जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये इक्वेटर से जितने भी ऊपर सारे सर्कुलर पैरेलल लाइंस हैं, इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और इन लैटिट्यूड्स को हम
किस में मेजर करते हैं बच्चे? यहाँ देखो 0 आपको डिग्री लिखा हुआ ना, 15 डिग्री यहाँ पर, और इक्वेटर को 0 डिग्री। सो यहाँ पर लैटिट्यूड को डिग्री में मेजर किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, this is an activity for you people. So take a big round potato or a ball, pierce a knitting needle through it. The needle resembles the axis shown in a globe. You can now move the potatoes or a ball around this axis from the left to right. ओके, आपको ये एक जो है एक्टिविटी आपको दी हुई है, तो आप इसको कर सकते हैं। आपने कोई भी बड़ा सा, आपने एक बिल्कुल इसके अंदर एक राउंड शेप का, आप या तो एक पोटैटो ले लो या फिर आप अपनी एक बॉल ले लें, और उसके बाद जो आपके निटिंग वाली जो नीडल होती है ना, निटिंग करने के लिए जो नीडल होती है, सिलाई होती है, उसको आप क्या करो, बिल्कुल जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि एक नीडल जो है टिल्टेड फॉर्म में हमने पूरे ग्लोब के अंदर उसको डाल दिया, तो ऐसे ही अपने वहां से निकालना है उनके बीच में से उस निडल को। एंड ये जो निडल है, ये ग्लोब पर जो जो हमारे ग्लोब के ऊपर दिखाया गया जो एक्सिस है, उसके बिल्कुल उसके एग्जैक्ट होगी। सो अब आपने क्या करना है, पोटैटो या फिर आपकी जो बॉल है, उसको आपने उसके एक्सिस से लेफ्ट टू राइट पर आपने उसे घुमाना है। ठीक है, तो सेम आपका ये ग्लोब की तरह बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर है? दिस इज आवर लैटिट्यूड्स। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेटर लाइन। सो लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड लाइंस हमारे इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एंड दे नेवर टच वन अनदर। और कभी भी ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। नाउ द अब हमने क्या बोला कि जो इक्वेटर हो आपके पास, अभी आपको बोला है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं आपके, ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ओके, एंड द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। विषय आपने पिक्चर्स में देखा, यहाँ पर 0 डिग्री से आपने 0 डिग्री से इक्वेटर को रिप्रेजेंट किया है। Okay, so the equator represents the 0 degree latitude. So since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of circle around the earth, and it will measure 1/4 of the 360 degree. अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगी ये चीज बच्चे, कि आपके पास 0 डिग्री के फॉर्म में क्यों मेजर किया है हमने, सभी लैटिट्यूड को डिग्री में क्यों किया है, कि यू नो दैट कि सर्कल जो होता है हमारा, ठीक है, एक सर्कल जो होता है वो कितने, उसमें टोटल कितने का होता है, उसके 360 डिग्री का। ओके, 360 डिग्रीज होती है ना, एक पूरा सर्कल जो होगा उसका यह 360 डिग्रीज में होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो हमारा अर्थ होता है वो भी एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, एक सर्कल फॉर्म में है, तो इसीलिए उसका भी टोटल डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री का हो गया हमारे पास। सो 360 डिग्री का है। अब हमने क्या करा, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक इक्वेटर लाइन से। जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 360 का हाफ कितना हो गया आपके पास, 180। ओके, 360 का कितना हो गया, 180 आपके पास हो गया। सो इसीलिए पहले तो हम इसको डिग्री की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, सो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड round the earth, and it will measure 1/4 of the 360 degrees, that is 90 डिग्री। अब ये देखिए, ये आप यहाँ पर समझिए इस लाइन को, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री। 0 डिग्री से अब क्योंकि हमने बताया भी कि यहाँ से क्या हुआ था, इसने हमारे पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी आपके पास क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब ये तो ग्लोब का आपका आगे वाला पार्ट है ना, इसके पीछे भी तो है आपके पास पूरा, तो पूरा का पूरा आपका 360 है। तो 360 का जब चारों तरफ से हाफ किया आपने, पूरा एक सर्कल घुमाया, तो वो आपके पास क्या हुआ, 180 डिग्री में हो गया। ठीक है, 180 डिग्री में हो गया। तो 180 डिग्री में अब आपके पास ये देखिए, 180 डिग्री में ये पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये तो 180 का आगे वाला पोर्शन है ना, आगे वाला पोर्शन है, और इसके पीछे भी एक पोर्शन होगा, इसके पीछे भी होगा। सो ये क्या हुआ आपके पास, 180 का हाफ कर दो 90,
ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 90 और इसका पिछले में हो गया 90, तो 90 प्लस 90 180। ओके, तो इसके इसीलिए वो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर since the distance from the equator to either the poles is 1/4 of a circle round the earth, it is measured 1/4 of 360 degree, that is 90 degree। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि जो हमारे पास इक्वेटर है उससे दोनों तरफ आपके पास क्या है, पोल्स के बीच की का डिस्टेंस, दोनों तरफ पोल के बीच का डिस्टेंस अर्थ के चारों ओर का जो सर्कल है उसका 1/4 है। ठीक है, इनके चारों दोनों का 1/4 है ये। सो 1/4 का मतलब क्या हुआ, इसीलिए आपकी जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, 360 डिग्री का 1/4। 360 डिग्री का जब 1/4 आप करोगे तो 1/4 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, इसका जब 1/4 करोगे यानी 4 से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास आएगा 90 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से 90 डिग्री जो है आपके पास, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल। इसीलिए हमने यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जब आपके पास ये जो नॉर्थ पोल आया ना आपके पास, नॉर्थ पोल को हमने क्या बताया, 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, 90 डिग्री नॉर्थ एंड इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ। अब यहाँ पर नीचे साउथ है तो साउथ में जो साउथ पोल है, तो साउथ पोल में भी कितना होगा, 90 डिग्री साउथ। तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। क्लियर? So as such, all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of equator are called south latitude. तो इस तरीके से जितने भी सभी पैरेलल्स हैं, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ, जो नॉर्थ के जितने भी सभी, देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर है, इसके ऊपर सारा नॉर्थ है, तो और नॉर्थ में जितने भी आपके लैटिट्यूड हैं, तो ऑल पैरेलल नॉर्थ टू ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इनको हम क्या बोलेंगे, इन सभी को बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, ये हमारे इक्वेटर से जितने भी लैटिट्यूड हुए हमारे, ये हमारे हुए नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड सिमिलरली और पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो जितने भी ये लैटिट्यूड हैं आपके, ये आपके पास क्या हुए, साउथ लैटिट्यूड। ओके, सो ये है आपके साउथ लैटिट्यूड। So all parallel south of equator are called south latitude. So the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. तो आप यहाँ पर देखिए एक चीज देख रहे हो कि जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जितने भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो डिग्रीज लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम यहाँ पर हमने नॉर्थ लिखा एन, नॉर्थ, और जब साउथ की तरफ जाएं तो ये लिखा हुआ है एस। जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर वहां लिख रहे हैं एस। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड, हर एक लैटिट्यूड की जो वैल्यू होती है इज देयरफॉर फॉलोड बाय द इधर द वर्ड नॉर्थ एंड साउथ। तो या तो हम नॉर्थ से या फिर साउथ के साथ वो फॉलो होगी। सो जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय, इसीलिए आमतौर पर हम इसको इंडिकेट किन लेटर से करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, एंड और एस से हम इनको इंडिकेट करते हैं। For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil. Horizonte in Brazil, South America, are located in parallel of about 20 degree latitude. अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर, ठीक है, और साउथ अमेरिका ब्राजील में होरिजोंटे, ठीक है, वो भी, वो क्या है, दोनों के दोनों कहाँ पर, किस पैरेलल पर लोकेटेड है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है दोनों के दोनों। यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है और ब्राजील में जो होरिजोंटे है, वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। लेकिन हम उनके बीच में डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे पास महाराष्ट्र में चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और 20 डिग्री अगर हम साउथ में जाएं
तो वहां पर ब्राजील का जो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है। तो इस तरीके से हम जो है एक एग्जैक्ट पॉइंट, एक एग्जैक्ट प्लेस जो है ना हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन लैटिट्यूड के जरिए। और यहाँ पर भी जब हम उनको नॉर्थ एंड साउथ के अंदर इनको क्या कर देते हैं, इनको डिस्क्राइब कर देते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है प्लेसेस को लोकेट करना। सो वी देयरफॉर say that Chandrapur is situated on 20 degree north latitude and below horizonte is situated at 20 degrees south latitude. Okay students, and we see in figure 2.2, आप 2.2 आपके पास बुक में फिगर दिया हुआ है लैटिट्यूड का, that we move away from the equator the size of parallel of latitude decreases. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो लैटिट्यूड का साइज है, ठीक है, वो आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ओके, इनका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे ही इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? So now student time is over now. So that's all for today. Have a good day.